Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma and we are going to today talk about how to cover the current affairs. There are many students who are new to this channel and many students who have just started their preparation for the first time and they are always confused, ma'am, how to study current affairs. I have received 15 plus mails in the last few days, just students who are very curious and they are asking, ma'am, how to start the current affairs, how to streamline, because in the newspaper there are so many articles, it takes us the whole day to cover the newspaper. Then there are these apps, websites, magazines. So how to process all this information? And then we have to practice mocks, so how to take out time for that? See, first of all, your brain knows what to process and what to ignore, and your brain also knows how to make notes. It's just you have not sharpened it up, you have not disciplined it, and that is where the problem starts. When the discipline is lacking, we run after so many resources. When your brain is disciplined, it will know that I have to keep my resources limited and I have to be on time when it comes to making notes or reading the current affairs or practicing the mocks. तो जब हमारा ब्रेन डिसिप्लिन्ड होता है तो उसे पता होता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना टाइम डेडिकेट करना है. जब डिसिप्लिन नहीं होता तो हम पूरा पूरा दिन सिर्फ करंट अफेयर्स इधर से उधर हजार सोर्सेज से निकालने में वेस्ट कर देते हैं. एंड व्हेन योर माइंड इज नॉट डिसिप्लिन्ड, यू विल सी दैट यू हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्स ऑन योर मोबाइल फोन जस्ट फॉर करंट अफेयर्स. जब जिस स्टूडेंट का माइंड डिसिप्लिन नहीं होता ना, उसके मोबाइल फोन में आप देखना 5 से ऊपर एप्स होंगे जो सिर्फ करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड होंगे. उसको ये लगेगा यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहां से भी पढ़ लूँ, कहीं से भी हो खत्म कर लूँ, कवर कर लूँ सब कुछ. ठीक है, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू आस्क द राइट क्वेश्चन if you want to get your solution and if you want to make sure that you achieve your goal. The right questions will help you to find the right solutions, and it will save your time also. Now I'll just give you an example. Once Michelangelo, he was a famous sculptor, he was asked, how do you make such amazing sculptures? इतने अच्छे, इतने amazing मूर्तियां बना कैसे लेते हो, इतनी बारीकी कैसे ले आते हो? He gave a very humble answer. He said, the sculpture is already present in the marble. I just remove the excess marble. मतलब उन्होंने क्या कहा माइकल एंजेलो ने कि भैया स्कल्पचर, मूर्ति तो पत्थर के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, मैं तो वो जो एक्सेस पत्थर है वो निकाल देता हूँ. And this is what you have to apply in your life. The correct resource is already present in front of your eyes. You just have to look at it. You just have to remove all the unnecessary messy stuff that you gather in your 1 year preparation. आप एक साल की प्रिपरेशन में जो उल जुलूल, जो इतने सारे पीडीएफ, इतने सारे एप्स, इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो ना, आपको वो निकालना है. सही मटेरियल तो आपकी नजरों के सामने हमेशा प्रेजेंट रहता है. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे. ओके, सो फॉर करंट अफेयर्स स्टिक टू द न्यूज़पेपर्स फर्स्ट. ये न्यूज़पेपर आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, बिकॉज द पीपल हु आर मेकिंग दिस एग्जाम, दे आर नॉट मेकिंग दिस एग्जाम फ्रॉम वेबसाइट्स और एप्स. They are not dependent on apps. They are mature, very experienced people who read the newspapers daily. ओके, तो ये समझना जरूरी है कि जो लोग आपका एग्जाम तय कर रहे हैं ना, बना रहे हैं, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं. Kids are not setting your question paper. Only, immature kids, they run after thousands of resources. But the paper setters, the exam setters are grown up, experienced, mature people. And they are reading newspapers daily. आपने देखा आपके पापा मम्मी जो हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं डेली. हजारों वेबसाइट एप्स नहीं डाउनलोड करके रखते, न्यूज़पेपर पे रिलाई करते हैं. हमारे जितने भी बड़े हैं घर के, वो सब न्यूज़पेपर पे रिलाई करते हैं. तो इसीलिए आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए न्यूज़पेपर. Okay, even the IAS officers, the IPS officers currently, even our prime minister, they read the newspapers daily. They do not, download the apps. So what make you think that by downloading 5-10 apps you will nail this exam? So make sure the primary source of this exam, that is the newspaper, you need to depend on it initially. सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, आप जिसका भी इंटरव्यू देख लो, न्यूज़पेपर्स ही पढ़ते हैं. ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एप्स डाउनलोड करके उसमें से चीजें पढ़ें. ठीक है, सुबह सुबह उठकर अपना न्यूज़पेपर पढ़ा और अपने काम पर लग गए.
So make sure you pick up any one newspaper, the Hindu or the Indian Express, any one newspaper. कोई भी एक newspaper आपको pick करना है इसके अंदर. अब प्लीज इसके अंदर ना there are many students who are devoting their entire day to both these newspapers. उनको लगता है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारे chances ज्यादा है एग्जाम क्लियर करने के. नहीं भैया, जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर समझ रहे हो तो आपके chances ज्यादा है एग्जाम क्लियर करने के. Who told you that the more you study or the more you read, the higher your chances are to clear the exam? That is ultimate lie. The better you read and the better you understand and assimilate, the higher your chances are to clear this exam. Okay? तो जितना अच्छे से चीजों को समझते हो, जितना अच्छे से चीजों को पढ़ते हो, उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के, ना कि कितना ज्यादा आप पढ़ रहे हो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो ये तो फर्स्ट आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया. दिस इज द फर्स्ट डाउट दैट आई हैव क्लियर्ड. व्हिच न्यूज़पेपर टू पिक अप? इट इज योर हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको पसंद हो. सम स्टूडेंट्स दे लाइक टू रीड हिंदू, सम स्टूडेंट्स दे लाइक द लैंग्वेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस. दैट इज ऑन यू. आप पहले दोनों न्यूज़पेपर को मंगा के दोनों की लैंग्वेज देख लो. अगर आपको हिंदू की लैंग्वेज इजी लग रही है तो हिंदू पढ़ो, अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस इजी लगता है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो. इट डिपेंड्स ऑन योर ओन वोकैबुलरी एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज. ओके. एंड अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो. वैसे तो मैं आपको बोलूंगी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप. क्या होगा, क्योंकि सी बोथ लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, ऐसा आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश इज सुपीरियर देन हिंदी. नो, हिंदी इज इक्वली इम्पोर्टेंट. Okay, even the English medium students, you should also try to build up your vocab in Hindi. Hindi language is also equally good. All the languages are good. Okay, कोई एक लैंग्वेज नहीं होती है कि एक ही लैंग्वेज अच्छी है, सारी लैंग्वेज अच्छी है. बट अगर आपको थोड़ा बहुत होल्ड है लैंग्वेजेस के ऊपर, मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर, वो अच्छा ही हो जाता है. बिकॉज फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन अदर डिफरेंट नेशंस, राइट. थोड़ा बहुत लैंग्वेज पे आपका होल्ड रहता है तो इजी रहता है, डिपेंडेंसी कम रहती है. ठीक है, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, या आपके ऊपर है, ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं है. ठीक है, और अभी डू नॉट एक्सपेरिमेंट इन दिस 1 year प्रिपरेशन बिकॉज टाइम फ्लाइज वेरी सून. सो इसलिए मेक श्योर यू pick up any one newspaper in the choice of language that you prefer to. Okay, now coming on to the magazine. So one magazine, that is Yojana. Now students here also study huge number of magazines. Some students study Kurukshetra, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है. One magazine is okay. If you want to study Kurukshetra, study Kurukshetra. If you want to study Yojana, study Yojana. If you do not want to study any magazine, that is also good. Magazines are not compulsory if you are daily religiously studying the newspapers and plus especially the editorials in the newspaper. ठीक है, then even if you are skipping the magazine, that is okay. प्लीज ये इस गलत फहमी में मत रहना कि हमने योजना नहीं पढ़ी तो हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा. नहीं, बहुत से 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है विदाउट रीडिंग एनी मैगजीन, जस्ट बाय फॉलोइंग द न्यूज़पेपर्स एंड प्रैक्टिसिंग मॉक्स. ठीक है, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफी क्या 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैगजीन पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर और मॉक्स देते हैं. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स. So many toppers who gave this exam along with their jobs, they did not have time to study magazine, still they topped this exam. Why? Because they were dedicated and consistent in their newspaper reading and their mocks. Okay, and if you are a working professional and if you find it very hard to study the newspaper, then you can refer to any website or app, but make sure only one website. 2 से ज्यादा वेबसाइट या 1 से ज्यादा वेबसाइट रखोगे तो आप रोने लगोगे. ठीक है, इसीलिए एक ही वेबसाइट रखो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा. एंड व्हेन देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, देन वी ब्रेक डाउन. दिस मशीनरी कॉल्ड ब्रेन इज वेरी वेरी क्रिटिकल. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दिस मशीनरी. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवरलोडिंग इट. ओके, सो कीप वन वेबसाइट और वन ऐप. नाउ हियर आई वुड सजेस्ट to download the Unacademy learning app. आप Unacademy का learning app download कर सकते हो. And there we launch 3 kinds of mock test throughout the week. Okay, so from Monday to Friday we launch 3 kind of mock test. First is Mrinal's Monday, wherein we give you 20 MCQs which you have to solve in 20 minutes. And it is in Hindi also, English also, every day at 8 PM. रात को 8 बजे ये हम हर मंडे को MCQs लॉन्च करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स के ऊपर होते हैं क्योंकि मृणाल सर ने तैयार किए हैं. ठीक है,
देन वी हैव T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये इट इज कंडक्टेड एवरी इवनिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 7:30 PM, wherein you solve 15 MCQs in 15 minutes based on the current affairs of that particular day. उस दिन आपने जो भी current affairs पढ़े उसके ऊपर ये 15 MCQs आप solve करते हैं. And we have Abhiyan daily static quiz 2.0. ये static quiz है, that is it is based on subjects. Okay, so here also in 15 minutes you get to solve 15 MCQs every Monday to Fridays morning 10 AM. So these are free mock test. ये आपके free mocks हैं जो अनअकैडमी के ऐप पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इनको आप दे सकते हो आराम से. All right. Also at every Sunday 11 AM in the morning we conduct free All India Scholarship Test UPSC Mega Combat. आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हम क्या करते हैं, हम हर संडे को फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो 1 घंटे का होता है. इसमें आपको आपकी प्रीलिम्स की तैयारी करने का भी मौका मिलता है, प्लस आपको स्कॉलरशिप जीतने का और एक्साइटिंग प्राइज जीतने का भी मौका मिलता है, ठीक है. तो ये अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फॉर यू टू रिवाइज एंड टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव स्टडीड. एंड देन आपको पता है मॉक्स की बात तो हो गई, PYQs, previous year questions. So on UPSC's website you will get the prelims question paper. UPSC के वेबसाइट पर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे. अगर वहां नहीं मिलते हैं, वैसे तो वहां मिल जाएंगे, बट अगर आपको और पुराने चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोचिंग की वेबसाइट से जस्ट सिंपली टाइप प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एंड यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर ऑन गूगल, राइट. बट सॉल्विंग दीज क्वेश्चन पेपर्स इज अ मस्ट in question. See why? Because when you look at the questions in the UPSC prelims question paper, you get to really know what kind of questions they can frame. मॉक्स के साथ साथ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको यू हैव एन फेयर आइडिया व्हाट द एग्जामिनर थिंक्स एंड हाउ द एग्जामिनर थिंक्स व्हेन ही फ्रेम्स द क्वेश्चंस, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्वीक योर प्रिपरेशन. आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे जब आपको पता होगा कि भैया क्वेश्चन पेपर की डिमांड क्या रहती है हर साल, ठीक है. प्लस शुरू में आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता, इट्स वेरी नॉर्मल टू नॉट नो द आंसर्स टू द क्वेश्चंस इनिशियली, and even in the mid of your preparation if you're finding it hard to solve the questions, no issues. Just don't give up. Revise the solutions. Learn and understand the solutions. That is how you expand your knowledge base. देखो पेट से तो कोई भी सीख कर नहीं आता है ना, पेट से तो कोई भी लर्न करके नहीं आता है ना चीजें, हम सीखते हैं और जैसे जैसे हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, वैसे वैसे अपना इंफॉर्मेशन बेस भी बनता है, ठीक है. तो कोई ईगो मत बीच में लेकर आना कि भैया मेरे तो 100 में से 10 नंबर आ रहे हैं मॉक्स में, या 100 में से 5 नंबर आ रहे हैं. ईगो नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी नो ईगो. आपके अंदर खुशी होनी चाहिए कि चलो 100 में से अगर 5 नंबर आए तो बाकी 95 मार्क्स का मैंने अपना इंफॉर्मेशन बेस बढ़ाया. अभी ये गलती जो मैंने इस पेपर में करी है, मॉक में करी है, चलो थैंक गॉड मैं इसे फाइनल एग्जाम में नहीं करूंगी या करूंगा. The mistakes I am think like this, the mistakes I am making in the mocks, I am very grateful for them because now I have realized that these are my mistakes. I will not repeat them in the actual exam, right? So don't be egoistic and arrogant when you solve your mocks. Be very humble, be very generous towards yourself and be a learner. You should be a learner forever, because the time when you think that you have learned everything is the time when you have become egoistic. जब आप ये सोच लेते हो ना मुझे तो सब आ गया, मुझे तो सब पता है, वही समय होता है जब आप सबसे बड़े ईगोइस्टिक बन चुके होते हो, आपको पता भी नहीं चलता, बहुत सटल वे में, ठीक है. तो हमेशा एक लर्नर बने रहो, सीखते रहो और हमेशा थैंक यू बोलते रहो अपने फेलियर्स को, क्योंकि वो आपको वो मिस्टेक्स वापस रिपीट करने से रोकती हैं, आपको सिखाते हैं कि भैया ये गलती मैंने आप कर दी, इसको तो रिपीट नहीं करना, ठीक है. दिस इज हाउ यू स्टडी द करंट अफेयर्स. नाउ द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स इज दैट मैम शुड बी मेक नोट्स. इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. इफ यू कैन मेक ऑफलाइन नोट्स, वेरी गुड. इफ यू कैन मेक ऑनलाइन नोट्स, दैट टू इज वेरी गुड, बट डोंट से दैट यू विल मेक नो नोट्स, ठीक है. दैट इज द पॉइंट वेयर यू विल फॉल डाउन. ये मत बोलना मैं तो बिना नोट्स बनाए ही साल भर के करंट अफेयर्स याद रख लूंगा, या मेरे पास तो कोचिंग का PDF है भैया, मेरा तो काम चल गया. नहीं, वो PDF आपको बोझ लगेगा जब रिवीजन की बारी आएगी. व्हेन द रिवीजन टाइम विल कम, दिस सेम PDF ऑफ करंट अफेयर्स एंड कोचिंग मटेरियल्स विल फील लाइक अ हेवी बर्डन ऑन योर हेड. But if you have made your own notes, because the information is already stored in your subconscious mind, when you will revise them, it will become very easy.
You will remember, yes, here I made the flow chart. Yes, here I made the mind map. Yes, here I made a mnemonic to remember things. ठीक है? तो make sure that you are taking down notes in your own language. Do not take down notes in paragraphs. Why are you trying to write a book of current affairs? No. Take notes in points. Take notes through mind maps. Take notes through flow charts. Be creative in note making. Okay? So this is how you have to move forward with your current affair preparation. If you have any doubt, do let me know in the comment section.